Good morning, students. I hope you are doing well in this testing time. I am Nilanjana Sharma. Today, I am going to teach you magnetic properties of solid. The magnetic properties of different materials are studied in terms of their magnetic moment, which arises due to orbital motion and spinning motion of the electron. As electron is a charged particle, its orbital motion produces a small magnetic field along the axis of rotation, and its spinning motion produces a small magnetic field along the spinning axis. Each electron considered as a small magnet because electron is a charged particle and they are in moving, that's why. A small magnet having a resultant permanent magnetic moment. As magnetic moment is a vector quantity, that's why the net magnetic moment of an electron may be represented by a arrow. Vector जो quantity होते हैं students, उनको किसी से represent करते हैं? Arrow से. So a material may be considered as two number of magnetic dipole. Magnetic dipole similar to as the bar magnet with north and south pole. This magnetic dipole on the behavior in the external magnetic field, the substance are divided into different category. Substance are divided into 5 category. Number 1, diamagnetic substance. Number 2, paramagnetic substance. Number 3, ferromagnetic substance. Number 4, antiferromagnetic substance. And number 5 is ferrimagnetic substance. Okay, students, there are defined into it. This is the simple question: how many types of magnetic substances? Here there are 5 types of magnetic substances. Number 1, diamagnetic substances. In a previous class, in class 11, you all are aware about that. If the outermost configuration means a simple, those substances which contain fully filled orbital, they are known as diamagnetic. Actually ये बस केवल हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे स्टूडेंट, लेकिन इसका रीज़न नहीं जानते थे कि डायमैग्नेटिक फुल्ली फील्ड को कहते क्यों हैं. देखो, फुल्ली फील्ड का मतलब सिंपली हुआ कि एक एरो इसका अप गया, एक एरो क्या आया डाउन, मतलब एक एरो क्लॉकवाइज आएगा और दूसरा एरो क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज. तो उनका नेट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा जीरो. समझ गए? तो सिंपल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे कंडीशन में किसी सब्सटेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक कह सकते हैं. नंबर 1, सब्सटेंसेस विच आर weakly repelled by the external magnetic field. पहला कंडीशन क्या होना चाहिए डायमैग्नेटिक के लिए? Substances which are weakly repelled by the external magnetic field are called diamagnetic substance. इनका एग्जाम्पल लिख लो स्टूडेंट्स. वाटर, सोडियम क्लोराइड, benzene, these substances, these compounds are the diamagnetic substance. Number 2, the property thus exhibited is called diamagnetic, and this property is shown only by those substances which contain fully filled orbital. Which contain fully filled orbital means they have paired electron. उनके पास outermost configuration में क्या होना चाहिए students? Paired electron. No unpaired electron is present. The magnetic moment passed by an electron with a spin in one direction is cancelled by that with a spin in the opposite direction. In which the opposite direction. समझ गए? मतलब एक एरो ऊपर गया, एक एरो नीचे आया, एक क्लॉकवाइज घुमा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल. क्लियर? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्लियर हो गया होगा ना स्टूडेंट्स. चलो नंबर 2, para
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्लास 11 में यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए, वहां पे क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है। समझ गए, उसी को कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, substances which are attracted by the external magnetic field are called paramagnetic। इनका पहला कंडीशन होता है स्टूडेंट्स कि ये सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। The property thus exhibited is called paramagnetic, and this property is shown by those substances whose atoms, ions or molecules contain unpaired electron। इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिख लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज, फेरस के ऊपर 3+। देखो ये सब चार्ज देके ना स्टूडेंट्स हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करके अनपेयर कर दिए हैं। दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंस आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लॉस देयर मैग्नेटिज्म, ये लॉस कर देते हैं देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाए तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर गया। समझ गए, ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो 2 कैटेगरी क्लियर है। चलो तीसरा टाइप, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्टूडेंट्स फेरो का मतलब ही समझ गए होंगे, आयरन, फेरस, ठीक है ना, लैटिन नेम है आयरन का फेरम। दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। समझ गए, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इवन इन द absence of the magnetic field are called ferromagnetic substance। इसका एग्जाम्पल आयरन फैमिली ले लेते हैं, फेरस, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड। सो फेरोमैग्नेटिज्म, such substance, ऐसे सब्सटेंस remain permanently magnetized once they have been magnetized। These substances are very strongly attracted by your magnetic field। ऐसे सब्सटेंस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किससे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड से। समझ गए, द रीजन फॉर सच ए मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका एक्चुअली रीजन क्या है, बाय दिस सब्सटेंस इज दैट इन द सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ दिस सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डोमेन? डोमेन एक सिंपल पहचानने का तरीका, ग्रुप में अलाइनमेंट हमेशा एक जैसा होगा, उसी को क्या कहते हैं हम, डोमेन। डोमेन का सिंपली डिफिनीशन बताते हैं, व्हाट इज डोमेन। सिंपली अलाइनमेंट उनका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक ही साइड से होना चाहिए, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। जैसे एक बड़े से ग्रुप में एक छोटा छोटा ग्रुप है, देखो एक ही जैसा अलाइनमेंट, हियर एरो इज टोटली अप, हियर एरो इज टोटली डाउन। समझ गए, हियर एरो इज दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, हियर एरो इज लेफ्ट डायरेक्शन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे, डोमेन। सिंपल डोमेन का डिफिनीशन अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक डोमेन, तो बोलेंगे magnetic domain is a region within a magnetic material in which the magnetization is in a uniform direction। Is it clear? Magnetic domain is a region, एक एरिया है, छोटा छोटा विलेज, छोटा छोटा गांव। समझ गए ना, magnetic domain is a region within a magnetic material in which the magnetization is in a uniform direction, and this means that the individual magnetic moment of the atoms are aligned with one another and they point in the same direction। लास्ट लाइन एक बार फिर से समझ लो, this means that the individual magnetic moment of the atoms are aligned with one another and they
पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब छोटा छोटा एरिया का डायरेक्शन हमेशा एक होना चाहिए, ये वाले ग्रुप का ऊपर, ये वाले ग्रुप का नीचे, इसका राइट, इसका लेफ्ट, लाइक दैट। इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डोमेन। क्लियर? द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर क्रोमियम ऑक्साइड, इट इज यूज्ड टू मेक, देखो CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड यूज्ड होता है मैग्नेटिक टेप बनाने में, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑडियो रिकॉर्डिंग। समझ गए? ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो मैग्नेटिक टेप होता है उसी में यूज होता है कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्रोमियम ऑक्साइड। चलो लास्ट फोर्थ टाइप, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, substance which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of magnetic moment of the domains, but actually they possess zero net magnetic moment. Clear? एंटी का मतलब हुआ अपोजिट या नो, समझ गया? डोंट लाइक। सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू पॉसेस paramagnetism or ferromagnetism on the basis of magnetic moment of the domains, but actually they possess zero net magnetic moment, are called एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, मैग्नीज ऑक्साइड। समझ गए? ये इसलिए होते हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डोमेन, मतलब एक ऊपर गया एक नीचे आया, एक ऊपर गया एक नीचे आया, इक्वल नंबर रहेगा, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। एंड द लास्ट टाइप, लास्ट कैटेगरी इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट योर कैटेगरी, substance which are expected to possess large magnetism on the basis of the magnetic moment of the domain, but actually have a small net magnetic moment, are called फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटाइट इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मैग्नेटाइट Fe3O4। समझ गए? और फेरीमैग्नेटिज्म अराइज करता है ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन। अनइक्वल नंबर मतलब इधर 2 है उधर 1 है, इधर 2 है उधर 1 है। अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन इन opposite direction resulting in some net magnetic moment. Is it clear? फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी-फेरोमैग्नेटिक सॉलिड चेंज कर सकता है पैरामैग्नेटिक पे एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर दोगे तो फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड चेंज कर सकता है पैरामैग्नेटिक पे, और ड्यू टू द रेंडोमाइजेशन ऑफ डोमेन, इसलिए होता है कि रेंडोमाइजेशन ऑफ डोमेन हो जाता है, स्पिन इधर उधर हो जाते हैं, दैट्स वाई। क्लियर है? इट मे बी फर्दर पॉइंट आउट हियर टू इच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर।